नक्काश व नक्श, कातिब व खत, बानी व बिना, बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना, जिन्नो मलक, ज़मीन व फलक, गर्दो कीमिया, दुनिया व दीन, हुदूस व क़िदम, बंदो खुदा, सब शाहिदे कमाल शह मशरिक़ैन है। जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، عدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बारे दीगर नारे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार नारे सलावत से और नमाज नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार की इजाज़त से एक सलाम पहले पेश खिदमत है, उसके बाद तामीली हुक्म में एक सलाम से कुछ और अशार भी पेश करूँगा। पेश करता हूँ। सरकार कैसी पेशे रब झुकी थी तेरी पेशानी हुसैन, कैसी पेशे रब झुकी थी तेरी पेशानी हुसैन,
खुद जबीने अर्श तक है महवे हैरानी हुसैन। कैसी पेशे रब झुकी थी तेरी पेशानी हुसैन। खुद जबीने अर्श तक है महवे हैरानी हुसैन। जब से तेरे नाम के तुगरों को आवेज़ां किया, जब से तेरे नाम के तुगरों को आवेज़ां किया, दीद के काबिल है घर की जलवा सामानी हुसैन। जब से तेरे नाम के तुगरों को आवेज़ां किया, दीद के काबिल है घर की जलवा सामानी हुसैन। दीद के काबिल है घर की जलवा सामानी हुसैन। और किसी के दर पर जाएं तेरा दर होते हुए, और किसी के दर पर जाएं तेरा दर होते हुए, अक्ल वालों से नहीं मुमकिन ये नादानी हुसैन। और किसी के दर पर जाएं तेरा दर होते हुए, और किसी के दर पर जाएं तेरा दर होते हुए, अक्ल वालों से नहीं मुमकिन ये नादानी हुसैन। सरकार से पेश कर रहा हूँ, अपनी रफ़त नो के नेज़ा पर भी मनवा कर रहा। अपनी रफ़त नो के नेज़ा पर भी मनवा कर रहा। कितना मुश्किल काम और कितना बासानी हुसैन। अपनी रफ़त नो के नेज़ा पर भी मनवा कर रहा। कितना मुश्किल काम और कितना बासानी हुसैन। कितना मुश्किल काम और कितना बासानी हुसैन। देख कर इसको नज़र कैसे उठे उसकी तरफ, देख कर इसको नज़र कैसे उठे उसकी तरफ। तेरी जूती से सुबुक है ताजे सुल्तानी हुसैन। देख कर इसको मोहम्मद वाले देख कर इसको नज़र कैसे उठे उसकी तरफ। तेरी जूती से सुबुक है ताजे सुल्तानी हुसैन। ऐसा दिल जिसको तेरी उल्फत नहीं होती नसीब, ऐसा दिल जिसको तेरी उल्फत नहीं होती नसीब। जा नहीं सकती कभी उस दिल की वीरानी हुसैन। ऐसा दिल जिसको तेरी उल्फत नहीं होती नसीब, जा नहीं सकती कभी उस दिल की वीरानी हुसैन। देखिए शब आशूर के तनाजुर में एक शेर है। शब आशूर चेहरे के तगय्युर से आया है। शब आशूर चेहरे के तगय्युर से आया। तेरी जानिब झुक रही है हुर की पेशानी हुसैन। है शब आशूर चेहरे के तगय्युर से आया। तेरी जानिब झुक रही है हुर की पेशानी हुसैन। तेरी जानिब झुक रही है हुर की पेशानी हुसैन। तू तो फिर तू है तेरा इरफान इम्का में कहाँ। तू तो फिर तू है तेरा इरफान इम्का में कहाँ। जौन तक को आज तक दुनिया न पहचानी हुसैन। तू तो फिर तू है तेरा इरफान इम्का में कहाँ। तू तो फिर तू है तेरा इरफान इम्का में कहाँ। जौन तक को आज तक दुनिया न पहचानी हुसैन। तेरे होंठों की कसम बारे नदामत कम नहीं। तेरे होंठों की कसम
बारे नदामत कम नहीं, पानी पानी ही रहेगा हश्र तक पानी हुसैन। तेरे होंठों की कसम, बारे नदामत कम नहीं, पानी पानी ही रहेगा हश्र तक पानी हुसैन। चंद लम्हे वक्त की मीज़ां पर आते ही नहीं, चंद लम्हे वक्त की मीज़ां पे आते ही नहीं, आखिरी सजदा है तेरा कितना तूलानी हुसैन। चंद लम्हे वक्त की मीज़ां पर आते ही नहीं, आखिरी सजदा है तेरा कितना तूलानी हुसैन। हश्र तक के वास्ते दोनों की ये पहचान है, हश्र तक के वास्ते दोनों की ये पहचान है, जुल्म का बानी यजीद और अदल का बानी हुसैन। हश्र तक के वास्ते दोनों की ये पहचान है, जुल्म का बानी यजीद और अदल का बानी हुसैन। मुझसे कतरे को जहां वालों ने कौसर कह दिया, मुझसे कतरे को जहां वालों ने कौसर कह दिया, क्या से क्या कर देती है तेरी सना खानी हुसैन। मुझसे कतरे को जहां वालों ने कौसर कह दिया, क्या से क्या कर देती है तेरी सना खानी हुसैन। क्या से क्या कर देती है तेरी सना खानी हुसैन। और जो गमे शब्बीर में नौहा कुना होते नहीं, जो गमे शब्बीर में नौहा कुना होते नहीं, वो निगाहे रब में हकदारे जिना होते नहीं। जो गमे शब्बीर में नौहा कुना होते नहीं, वो निगाहे रब में हकदारे जिना होते नहीं। वो निगाहे रब में हकदारे जिना होते नहीं। और सरकार फैसला होता है अंदाज़े हिदायत देखकर, फैसला होता है अंदाज़े हिदायत देखकर, राहज़न दावों से मीरे कारवां होते नहीं। फैसला होता है अंदाज़े हिदायत देखकर, राहज़न दावों से मीरे कारवां होते नहीं। इसको कहते हैं इमामत, इसको कहते हैं इमामत, जिस्म तो है नातवां। इसको कहते हैं इमामत, जिस्म तो है नातवां, रूह की मंजिल में आबिद नातवां होते नहीं। इसको कहते हैं इमामत, जिस्म तो है नातवां, रूह की मंजिल में आबिद नातवां होते नहीं। हाँ यकीनन हस्बे रुतबा है बलाओं का नुज़ूल, हाँ यकीनन हस्बे रुतबा है बलाओं का नुज़ूल, मिसले अहले बैत सबके इम्तिहान होते नहीं। मिसले अहले बैत सबके इम्तिहान होते नहीं। सरकार गर न होते इस पर रोज़े इतरते अतहार के, गर न होते इस पर रोज़े इतरते अतहार के, हम ज़मी की समत हरगिज़ आसमां होते नहीं। गर न होते इस पर रोज़े इतरते अतहार के, हम ज़मी की समत हरगिज़ आसमां होते नहीं। इसे खुसूसी तौर पर देखिएगा, ये बताने आए हैं असग़र कि हम आले रसूल, ये बताने आए हैं असग़र कि हम आले रसूल,
बेज़बां होते हुए भी बेज़बां होते नहीं। ये बताने आए हैं असगर, ये बताने आए हैं असगर कि हम आले रसूल। बेज़बां होते हुए भी बेज़बां होते नहीं। जितना हुर पर मेहरबां है साक़िए कौसर का लाल। जितना हुर पर मेहरबां है साक़िए कौसर का लाल। लोग खुद अपने पर उतने मेहरबां होते नहीं। जितना हुर पर मेहरबां है, जितना हुर पर मेहरबां है साक़िए कौसर का लाल। लोग खुद अपने पर उतने मेहरबां होते नहीं। लोग खुद अपने पर उतने मेहरबां होते नहीं। ये शेर खुसूसी तौर पर तवज्जो का तलबगार हूँ। रन में सरकार, रन में झूले से जो आया ख़ास बच्चा है कोई। रन में झूले से जो आया ख़ास बच्चा है कोई। आम बच्चे इस कदर जल्दी जवां होते नहीं। रन में झूले से जो आया ख़ास बच्चा है कोई। आम बच्चे इस कदर जल्दी जवां होते नहीं। आम बच्चे इस कदर जल्दी जवां होते नहीं। जब से बच्चों ने सुना है नहर पर सोया जरी। जब से बच्चों ने सुना है नहर पर सोया जरी। हल्क में कांटे हैं और महवे फ़ुगां होते नहीं। जब से बच्चों ने सुना है नहर पर सोया जरी। हल्क में कांटे हैं और महवे फ़ुगां होते नहीं। खूने दिल की आँख से जारी है ऐ कौसर फरात। खूने दिल की आँख से जारी है ऐ कौसर फरात। ज़िक्र शय से हटके यूं आंसू रवां होते नहीं। खूने दिल की आँख से जारी है ऐ कौसर फरात। ज़िक्र शह से हटके यूं आंसू रवां होते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुमिनीन किराम, जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में मुशाहिदा कर रहे हैं, लोग समात फरमा रहे हैं, मुख्तसर अंदाज में 1-1.5 मिनट के अंदर पहले 2 पैगाम आपको देने हैं। यहाँ से जहाँ भी अज़ादारी हो रही है, ज़ाहिर है कि अब ये तो वबा पूरी दुनिया में ही है और पूरी दुनिया में ही अय्याम अज़ा शुरू हो चुके हैं, तो सबको एक पैगाम देना है और एक और 2 छोटे छोटे से पैगामात हैं जो आप तक पहुँचाने। पहला पैगाम तो ये है कि देखिए, याद रखिए कि अज़ादारी हमारी शहरग हयात है, इसमें कोई शक है, किसी को शक नहीं है, अज़ादारी हमारी शहरग हयात है। लेकिन याद रखिए कि अज़ादारों की जान भी हमारी ज़िम्मेदारी है, जानों की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी और शरई ज़िम्मेदारी है ना इस ज़माने में। लिहाजा जितनी भी एहतियातें हैं, ये मसला हुकूमत का नहीं है, ये मसला हमारे उलमा, हमारे मराजे सब ने बयान किया है। ये मसला अल्लाह और रसूल ने बयान किया है, मासूमीन ने बयान किया है कि जब कोई ऐसी वबा आ जाए, कुछ हो जाए तो एहतियात करो भाई। जो एहतियातें हैं उन एहतियातें डॉक्टर बताएंगे ना। लिहाजा जो डॉक्टर ने एहतियातें बताई हैं उन तमाम एहतियातों के साथ मजालिस मुनक़िद होंगी। जुलूस में भी वैसे ही जाना है, ये बार बार तकरार ना हो। ये पैगाम हर जगह दिया जा रहा है, मैं भी यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ कि मजालिस भी होंगी, जुलूस भी होंगे, लेकिन तमाम एहतियातों के
साथ होंगे, जितनी भी SOPs हैं उनके मुताबिक। और ये हुकूमत का ही मसला नहीं है, मैंने अर्ज़ कर दिया कि हमारे मराजे का और उलमा का भी सब यही फतवा है। और यहाँ भी जैसे सब बैठे हैं माशाल्लाह मास्क लगा के, इसी तरह जो आता जाए उसको मास्क देते जाइए। एक पैगाम। दूसरा पैगाम याद रखिए मुहर्रम के हवाले से क्या है कि करबला इख्तिलाफ की जगह नहीं है, करबला इख्तिलाफ का मैदान नहीं है, करबला इत्तिहाद का मैदान है, करबला वहदत का मैदान है, करबला शियों का मैदान नहीं है, करबला सुन्नियों का मैदान नहीं है, करबला इंसानियत का मैदान है। यानी जनाब सैयदुश शुहदा सारी इंसानियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, याद रखिएगा। इसीलिए जहां जहां इंसान है, क्या है? इंसान। जहां जहां इंसानियत है वहां वहां हुसैन मिलेगा, हर उस जगह हुसैन मिलेगा। ये दो पैगाम हो गए मुख्तसर मुख्तसर, इसको हमेशा याद रखें। अब उन्वान का ऐलान कर दें आपके सामने, जैसे कि पहले भी ऐलान किया लेकिन फिर ऐलान कर दें कि हुब्ब अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत मीज़ान ईमान है। ये इंशाअल्लाह इस मौजू पे हमारी मजालिस होंगी। मोहब्बत अहले बैत मीज़ान, मीज़ान यानी तराजू, यानी कि मेयार, मेयार ईमान है मोहब्बत अहले बैत। अच्छा, इस पे बात करेंगे कभी कुरान और सुन्नत में, कुरान और सीरत में, कुरान और हदीस में कहाँ से हम लेकर आए चीज़ों को। लेकर क्या आना, पूरा कुरान भी माशाल्लाह हमारे सामने, अल्लाह का कलाम भी हमारे सामने, उसमें भी ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी जा बजा। और हदीस का तो एक सिलसिला है जो पेश कर दिया जाएगा। और कोशिश हमारी ये होगी कि ऐसी रिवायात को पेश किया जाए कि जो हमारे बिरादरान क्या सब क्या मौजूद हो। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये ज़माना, ये माहौल ऐसा नहीं, हमेशा ये मेरा पैगाम सब जगह जा रहा है। याद रखिए, इस वक्त जो मिंबर से या मेहराब से मुसलमानों में इख्तिलाफात की बात करता है ना, वो किसी का दोस्त नहीं है, ना मुसलमानों का दोस्त है, ना वो इस्लाम का दोस्त है, बल्कि वो इस्लाम का भी दुश्मन है, वो मुसलमानों का भी दुश्मन है। आपके सामने ना कि सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, सारी यजीदी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हैं। तो हम तो तकसीम करते हैं दो कुव्वतों में भाई, एक हुसैनी और एक यजीदी। जो भी इंसानियत का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, वो सब हमको डालते हैं यजीदी ताकत के अंदर। और जो मजलूमों का साथ देता है वो हुसैनी है। लिहाजा याद रखिए इस बात को कि यहाँ से जो पैगाम देने की ज़रूरत है, वो क्या पैगाम देने की ज़रूरत है? मोहब्बत का पैगाम। और अहले बैत से ज़्यादा किसने मोहब्बत का पैगाम दिया? अहले बैत से ज़्यादा मोहब्बत कहाँ मिलेगी? जो कुर्बानियाँ ही देते चले गए कि लोगों में मोहब्बतें बाकी रहें, लोगों में नफ़रतें बाकी ना रहें। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए बात को आगे, ये मुकद्दिमा ज़ाहिर है कि पहली मजलिस है आज, तो आगाज़ मुहर्रम है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मुकद्दिमा आपके सामने पेश कर दिया जाए ताकि पूरी 10 मजलिसों का खुलासा चंद जुमलों में आपके सामने आ जाए कि हमें करना क्या है इस दौर में। ठीक है ना? आइए अब बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। सूरह अनफाल कुरान मजीद का 8वां सूरा और उसकी 27वीं आयत, जिसकी हमने तिलावत का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ुनुल्लाह व रसूला, ए मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो। अल्लाह और उसके रसूल से खयानत, अब ये खयानत की तशरीह इंशाल्लाह आती चली जाएगी, लेकिन अभी तर्जुमा सीधा सीधा सुन लीजिए। ए मोमिनो, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो। व तख़ूनो अमानातिकुम, और ख़बरदार जो अमानतें तुम्हारे पास हैं उनमें भी खयानत ना करना। अब ये अमानत से मुराद किसी की रखवाई अमानत नहीं, याद रखिए जो भी आपके पास है वो सब अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की। आपके यहाँ तक कि आपके बाल बच्चे भी अमानत हैं अल्लाह के बंदो। अब मैं आपके बिल्कुल करीब जाके एक नफ्सियाती तौर पे एक जुमला कह दूं कि आपके जो बच्चे हैं ना, ये भी अमानत हैं हुसैन की, ये भी अमानत है इमाम ज़माना की। यानी अगर इनकी तरबियत में भी कोई कमी रखी तो ये खयानत है। समझ में आ गई बात? यानी अगर इन बच्चों की तरबियत में भी कोई कमी रखी तो क्या किया आपने? ये खयानत की है। वला तख़ुनु अतफ़ है पहले वाले पे, जहाँ कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ुनुल्लाह व रसूलहू व तख़ूनु, ये तख़ूनु ला के बगैर इसलिए कि पहले वो ला आ गया, तो बस ये अब कभी खयानत ना करना उससे भी जो तुम्हारे पास है। वन तुम तालमून, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब अमानत है, अल्लाह की अमानत है। माल, दौलत, जान माल सब कुछ अमानत है, किसी में खयानत। और ख़यानत का माना मैंने समझा दिया।
ख़यानत का माना ये नहीं कि माल में ख़यानत, नहीं, नुफूस में भी ख़यानत होती है भाई। तरबियत में कमी रखी, ये भी ख़यानत है। लोगों को सही जगह, बच्चों को सही जगह नहीं भेजा पढ़ने के लिए, ये भी ख़यानत है। लोगों के दिल में मोहब्बत अहले बैत न डाली, बच्चों के दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं डाली। भी बता देंगे कुरान में कहाँ से और कैसे हुक्म है मोहब्बत अहले बैत का, ठीक है ना, आ जाएगा आपके सामने। क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि मेयार ईमान का, मेयार ईमान का मीज़ान, मीज़ान ईमान की तराजू ही मोहब्बत अहले बैत है। यानी अगर मोहब्बत अहले बैत न हो तो इंसान का कोई अमल भी काबिल कबूल भी नहीं, उसके कबूल होने की ज़मानत भी नहीं है। ये भी हम बता देंगे आपको। ये मैंने अर्ज़ कर दिया कि कोशिश ये करेंगे कि सारी गुफ्तगू ऐसी हो जो हमारे तमाम भाइयों के लिए काबिल कबूल और हर जगह उसकी दलाइल भी मौजूद हों, और वो हमें भी दुआएं दें, आपको भी दुआएं दें। और हम वैसे भी आप जानते हैं कि पढ़ते ही ऐसी मजलिस है कि भाई जिसमें कोशिश ये होती है कि सब आ जाएं, सब मिला। अब ये माहौल ऐसा है कि मजमा नहीं है, हुजूम नहीं है, तो भाई जा रही है जहाँ तक आवाज़, सब सुने हमारी बातों को, सब सुनेंगे हमारी बातों को। जब सब सुनेंगे तो दरवाजे खुले रखो ना भाई, न मालूम कितने हुर मौजूद हैं, या न मालूम कहाँ कहाँ हुर मौजूद हैं, इंतजार में है कि कोई आवाज़ तो दो। जब हुसैनी लहजे में आवाज़ दोगे तो हुर आएगा ना, भगाने वाली चीज़ नहीं है ये फर्श अज़ा। पहले मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत पे कि ये फर्श अज़ा, ये करबला वहदत की जगह है, इख्तिलाफ की जगह नहीं है। सलावत इनायत फरमाइए अब ये रोज़ाना इसकी ख़यानत की तशरीह होती चली जाएगी, लेकिन चलिए आज हमने मुकद्दिमा है ना आपके सामने ज़रा सी गुफ्तगू पेश कर दी कि ख़यानत क्या है। अब आइए बात है मोहब्बत की। सबसे पहले कुरान मजीद में जिस मोहब्बत का जिक्र किया गया, जो हम भी जिक्र करेंगे, वो है अल्लाह की मोहब्बत। ये तमाम मोहब्बतों पे बड़ी है ना अल्लाह की मोहब्बत। देखिए मोहब्बत के दराजात हैं, मोहब्बत के दराजात हैं। इंसान पहले मरहले में अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, और माँ से सबसे ज़्यादा, क्योंकि माँ तरबियत कर रही है ना, माँ दूध पिला रही है, शीर से अपने दूध से, अपने शीर से गोश्त पोस्ट हड्डियाँ मजबूत कर रही है बच्चे की, हर वक्त गोद में लिए, सारे काम भी गोद में लेके करती है। तो माँ की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, ऐसे ही है ना, बाल बच्चों की मोहब्बत, शादी हो गई बीवी बच्चों की मोहब्बत, ये भी याद रखिए, ये भी अल्लाह ने हुक्म दिया है। ऐसा नहीं कि घर में जनाब बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई ये ना कहे कि जन मुरीद है। वो जन मुरीद होना और बात है, और वो भी अल्लाह की। और बेहतरीन मखलूक अगर ऐसी ही ख़राब होती तो अल्लाह उसको माँ के दर्जे पर क्यों रखता। माँ का दर्जा कैसा दर्जा है कि अम्बिया भी माँ के सामने झुक रहे हैं, अइम्मा ताहिरीन भी माँ के एहतराम में झुक रहे हैं। क्यों? माँ का मकाम ही ऐसा रखा। और इसीलिए आप देखिए, चलिए ज़िम्नन एक जुमला अर्ज़ करते चले जाएं कि जब किसी मासूम ने अपना मनसब संभाला है ना, तो उस वक्त उसकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इमाम का मनसब है, रसूल का मनसब ही इतना बड़ा है भाई। पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, मनसब इतना बड़ा है कि जनाब माँ बाप को भी रसूल के सामने झुकना है, माँ बाप को भी अली की विलायत के सामने झुकना है, माँ बाप को भी इमामत के सामने झुकना है। लिहाजा वो झुकें तो फिर उसूल अल्लाह का तो उसमें खलल आता है। लिहाजा जब किसी मासूम ने अपना मनसब संभाला है, मासूम है इमाम, लेकिन मनसब संभालने की जब मुद्दत है तो किसी मासूम की माँ बाप दुनिया में नहीं है, वरना इमाम पर भी वाजिब है इताअत माँ बाप की, याद रखिएगा, नबी पर भी वाजिब है। इसीलिए मनसब संभालने से पहले आप देख लीजिए कि वो पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सल्लल्लाहु, या मौलाए आरिफान हो, या कोई भी इमाम हो, उसका अपनी माँ के साथ रवैया कैसा है आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि सिखाया है ना क़यामत तक के लिए। खैर, लेकिन ये सारी मोहब्बतें इंसान कुर्बान करता है किस मोहब्बत पे? अल्लाह की मोहब्बत। सब अंबिया भी अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर देते हैं, अइम्मा भी अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर देते हैं। मैंने अभी अपना जिक्र करा था ना कि हमारी मोहब्बतें हैं ना, ये सारी हमारी मोहब्बतें हैं, और हलाल तरीके से इंसान माल कमाता है तो कोई हर्ज नहीं, एक हद तक वो भी आप मोहब्बत की चीज़ है, हुकूक भी अदा कर रहा है, अल्लाह के हुकूक भी उसमें से अदा कर रहा है, बंदों के हुकूक भी उसमें से अदा कर रहा है, ठीक है ना, और हलाल तरीके से कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, कोई हद नहीं। अगर सरमायादार इस्लाम में ना होते जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसे, तो गाड़ी आगे कैसे चलती, कैसे चलती आगे। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार
कितने सरमायादार, कितने बड़े जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि ईमान सलामत है या नहीं। ऐसा तो नहीं, अगर दौलत, जिस दौलत के आने से ईमान रुखसत हो जाए वो दौलत है जहन्नम में ले जाने वाली। जिस दौलत से ईमान और मजबूत होता चला जाए और ईमान वालों पे खर्च हो, ईमान के आगे बढ़ाने में खर्च हो, तो फिर उस दौलत का और सवाब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, अल्लाह और उसको देता चला जाता है। सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद आले। ठीक है जनाब, बस अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये सारी मोहब्बत एक वक्त आ गया जनाब, कुर्बान करनी है वतन की मोहब्बत। अब इन सब पर हावी हो गई वतन की मोहब्बत के नहीं। खुदा न करे पाक सरजमीन पे आँच आ जाए, हमारे वतन पे आँच आ जाए, भाई माल भी कुर्बान करो, देना है, और एक वक्त आ जाए कि जान भी कुर्बान करो, तो करना है भाई, वतन है ना, करना है ना। अब आपने देखा कि मोहब्बत आगे बढ़ गई ना, मोहब्बत का मफहूम फैल गया। मोहब्बत का मफहूम कहाँ तक बढ़ गया भाई, वतन तक बढ़ गया। अच्छा जनाब, और आगे बढ़ के हिजरत करना पड़ जाए। लोगों ने हिजरतें नहीं की दुनिया में, तारीख में की ना हिजरतें। हिजरत ईमान, यानी ईमान वालों पर जिंदगी तंग हो गई, हत्ता कि मदीने में तंग हो गई, मक्के में तंग हो गई। हिजरतें हुई कि नहीं हुई ना हिजरतें। तो बस मालूम है कि एक वक्त वो आता है जब ईमान सलामत रखने के लिए, अगर कुफ्र की सरजमीन में, मसलन हम जब ये मुश्तरका हिंदुस्तान तमा रहते थे ना भाई, हिजरत करनी पड़ी, पाक सरजमीन में आना पड़ा, आ गए। या कहीं जुल्म व तशद्दुद इतना बढ़ गया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सादात ने हिजरतें की कि नहीं की, सारी दुनिया में हिजरतें करते चले गए। अब क्या हुआ कि वो और मोहब्बत आगे बढ़ गई कि अपने दीन को बचाने के लिए, दीन की मोहब्बत में, ईमान बचाने के लिए, ईमान की मोहब्बत में इंसान को कभी कभी अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। और तारीख भरी हुई है ऐसी हिजरतों से, तारीख भरी हुई है। अपनी हिजरत देख लीजिए, जब पाकिस्तान बना तो हिजरत की ना भाई, कुफ्र की सरजमीन से इधर हिजरत करके आए। अब बेशक वहाँ भी हमारे करोड़ों बहन भाई रहते हैं, हमारी बात का कोई बुरा ना माने, जाहिर है कि हम एक बात कह रहे हैं कि भाई वहाँ से जो हिजरत करके आए, क्यों हिजरत करके आए थे, जो हिजरत करके आए। गलत सही को छोड़ दीजिए कि गलत क्या था सही क्या था, मैं बात नहीं कर रहा। वो नीयत क्या थी वहाँ से आने की? नीयत ये थी कि भाई अपने जाएंगे ऐसी सरजमीन पे जहाँ मुसलमान रहेंगे, सब मुसलमानों का निज़ाम चलेगा। ये अलग बात कि वो कैसा निज़ाम, कहाँ का निज़ाम है ना, वो अलग बात। लेकिन नीयत क्या थी आने वालों की, मेजॉरिटी की नीयत क्या थी कि ऐसी सरजमीन में जाएंगे जहाँ हम बिल्कुल आज़ादी से अपने मजहबी मरासिम और सब हम नहीं, सब अपने अपने मजहब की पाबंदी करें। खुदा का शुक्र है कि कर भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो हालात मुश्किलात वो आपके सामने हैं। खैर, ये एक जुमला मुतरज़ा था। तो अब मोहब्बत बढ़ती चली गई ना आगे, किस किस चीज़ पर? एक बार हर चीज़ अल्लाह के नाम पे कुर्बान करनी, मोहब्बत की आला तरीन, या जिसको कहना चाहिए कि इश्क की आला तरीन मंजिल, है ना। आइए, ये तो हम तफसील बयान करेंगे, लेकिन पहले आयत का सहारा तो ले लेना। सूरह आले इमरान और तीसरा सूरह कुरान मजीद का, और इसकी 31वीं आयत, तीसरा सूरा 31वीं आयत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए हबीब कह दीजिए, कुल के साथ है ना आयत, अम्र का सीगा, हुक्म दिया जा रहा है। ए हबीब पहुंचा दीजिए, कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो। अच्छा ये बताइए कि आयत का जो हुक्म आ रहा है, ये सिर्फ उस ज़माने के मुसलमानों के लिए आ रहा है या क़यामत तक आने वालों के लिए? हाँ, ये बात हुई ना, किसके लिए आ रहा है? क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हुक्म आ रहा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए रसूल कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, यानी सबसे बड़ी मोहब्बत वो है ना। ए हबीब इनसे कहिए, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो, मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ये नहीं कहा कि इताअत अलग है, वो दूसरे मकामात पे, कितने मकामात पे इताअत और इत्तिबा में फ़र्क है, कई बार बयान कर चुके हैं, मौका मिला तो यहाँ भी कर देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, इताअत अलग है, इत्तिबा अलग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। अक़वाल 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 जहाँ फरमाया जा रहा है वहाँ इताअत है, इताअत इताअत। इत्तिबा जो मैं कर रहा हूँ, जिसे दोस्त रख रहा हूँ तुम दोस्त रखो, जिसे मैं दुश्मन रख रहा हूँ उसे तुम दुश्मन रखो, जो मुझसे बुग़्ज़ रखे उससे तुम भी बुग़्ज़ रखो, जो मुझसे मोहब्बत करे उससे तुम भी। ये है इत्तिबा, और तशरीह की कर देंगे आगे चल के इंशाअल्लाह मजालिस में। लेकिन अभी इतनी बात हुई ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है
तो मेरा इत्तिबा करो। ए हबीब कह दीजिए इनको, मेरा इत्तिबा करो। अल्लाह से मोहब्बत तक नहीं पहुँच सकते, नहीं, बस अल्लाह से मोहब्बत का दावा झूठा है अगर रसूल का इत्तिबा ना हो। इत्तिबाए रसूल ना हो तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा झूठा है। इत्तिबाए रसूल शर्त है। बस अगर तुमने इत्तिबाए रसूल कर लिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो, बस अगर तुमने रसूल का इत्तिबा किया, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, है ना। आयत की तशरीह हो जाए फिर रिवायात पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह जो कहना चाह रहे हैं मतलब सारी दुनिया में पहुंच जाएगा हमारा। युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मेरा इत्तिबा करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत का लफ्ज़ अभी रखिए, अभी मोहब्बत का लफ्ज़ रखिए। युहब्बिबकुमुल्लाह, जो लफ्ज़ कुरान में वही रखिए अभी। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, जब तुम अल्लाह से मोहब्बत के लायक हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। भाई इंसान है ना, गलतियां तो होंगी ना, गुनाह तो होंगे ना, लेकिन ये मोहब्बत क्या करेगी? अल्लाह की मोहब्बत। जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, ठीक है ना। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो जब मोहब्बत करेगा तुम्हारी गलतियां बख्श देगा। यही है मोहब्बत का कानून भाई। जिससे मोहब्बत करता है इंसान उसकी कोताहियों को बख्श देता है, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत का आलम क्या होगा? व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और बेशक वही अल्लाह है जो बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए अब देखें कि ये मोहब्बत कैसे मिलेगी अल्लाह की, है ना। कुरान मजीद ने तो बता दिया कि अल्लाह की मोहब्बत ये है कि तुम रसूल का इत्तिबा करो। अब आइए पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा रास्ता बता रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत का, ठीक है ना। अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से हासिल की जाए, कैसे हासिल की जाए, बताया जा रहा है। आइए पहली हदीस पेश करते हैं आपकी खिदमत में। लिकुल्लि शैइन असासुन, और इसी पे आज का बयान ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि तय यह है कि एक महदूद वक्त तक, ताकि और भी प्रोग्राम दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, एक महदूद वक्त जो हमने दिया उसी वक्त में बयान को ख़त्म किया जाए। लिकुल्लि शैइन असासुन, हर शय के लिए एक बुनियाद है। हुजूर का फरमाने की हर शय की एक बुनियाद है, असास है। किसी भी चीज़, घर भी बनाते हैं तो इसकी असास है ना, असास यानी बुनियाद। बुनियाद के बगैर जो चीज़ बनेगी क्या होगी? गिर जाएगी, धड़ाम से ख़त्म हो जाएगी। हत्ता कि मानवी तौर पे भी अगर दीन, किसी का दीन उसकी बुनियाद ना हो तो धड़ाम से गिर जाता है। कितने मज़हब दुनिया में आए, ख़त्म हो गए। कितने अकीदे गढ़ के बनाए गए, तो गढ़े हुए अकीदों से डरते नहीं हैं। जो अकीदे गढ़ लिए जाए उनसे डरा नहीं जाता, क्योंकि उनकी बुनियाद नहीं होती। जिसकी बुनियाद होती है मोहकम, 1400 साल की आंधियां भी उसे खत्म ना कर सकी। या है ना, जिनकी बुनियादें मजबूत हो फिर और उससे आगे बढ़ जाइए। जिसकी बुनियादों में मजलूमों का खून हो, जिसकी बुनियादों में पाक तरीन लहू कायनात का शामिल हो जाए, लिहाजा मुतमईन रहो कि पूरी दुनिया भी मिलकर हमलावर तो उस मकतब को मिटा नहीं सकती। जमानत दे दी करबला वालों ने, जमानत दे दी ना करबला वालों ने। चलिए, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलुल बैत, ये हुजूर की हदीस है। हर शय के लिए बुनियाद है, असास है, और इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास हमारी मोहब्बत, हमारे अहले बैत की मोहब्बत है। अगर इसके बगैर कोई चाहता है कि इस्लाम को समझ ले तो नामुमकिन। इसीलिए तमाम हमारे इस्लामी मकातिब फ़िक्र इसलिए कोशिश करते हैं, अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करते हैं तमाम मुसलमान के मेरा भी नाम मुहिब्बाने मोहम्मद व आले मोहम्मद में दर्ज हो जाए। किसी में हिम्मत नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिए। बस हम अहले बैत की मोहब्बत बुनियाद और असास है। किसकी असास है? इस्लाम की। हुब्बुना अहलुल बैत व असासुल इस्लाम है हुब्बुना अहलुल बैत, और इस्लाम की असास हमारी मोहब्बत है। अगर हमारी मोहब्बत नहीं तो इस्लाम छू के भी नहीं गया। इसलिए
कोई किसी में जुर्रत नहीं कि अपना नाम मुखालिफीन मोहम्मद व आले मोहम्मद में दर्ज कराए, बल्कि क्या कोशिश होगी, मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम दर्ज। जानता है ना, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अशरों पे अशरे आप लोग इस पे सुनते चले आ रहे हैं, मैं जल्दी से गुजर गया बात क्या कुरान है ना, कह रहे हैं ए रसूल आप कहिए, कह दीजिए इनसे, अल्लाह का हुक्म है, रसूल नहीं मांग रहे अजर रिसालत, अल्लाह का हुक्म है, इनसे कह दीजिए। इस पे आप सुनते रहते हैं, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली हदीस हो गई, पहली हदीस कि इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरी आल की, मेरे बच्चों की मोहब्बत है। ऐसा ही है। अब आइए बात को ज़रा सा आगे बढ़ा दें। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हुब्बुना अहलल बैत निज़ामुद्दीन, दीन का निज़ाम हमारी मोहब्बत है। हम अहले बैत की मोहब्बत दीन का निज़ाम है। जो इससे हट के चलेगा उसे मालूम ही नहीं दीन का निज़ाम क्या है। अगर कोई निज़ाम चाहता है, अगर कोई निज़ाम का नारा लगाता है, तो उसको सबसे पहले समझना होगा कि मोहब्बत अहले बैत है क्या। हुब्बुना अहलल बैत निज़ामुद्दीन, दीन का निज़ाम हम अहले बैत की मोहब्बत है। और इससे आगे बढ़कर अभी दलील भी दे देंगे। ये एक और फरमान पांचवें इमाम का समाअत फरमा लीजिए। अब सलावत भेजिए। हुब्बुना अहलल बैत ईमानुन व बुग़्ज़ुना कुफ्रुन, हम अहले बैत की मोहब्बत ईमान ही ईमान है, और हमारा बुग़्ज़ और हमारे से दुश्मनी क्या है, कुफ्र है। अभी और जब आएंगे वापस फिर हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएंगे तो आपको बता देंगे, अभी अपने पास रखिए। अब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैद को नसीहत करते वक्त फरमाया कि ज़ैद, और ये भी बात याद रखो, ये बात भी याद रखो कि तमाम चीज़ों की कोई जो बुनियाद होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद है, और इस्लाम की बुनियाद वही तकरार की कि इस्लाम की बुनियाद हमारी मोहब्बत है। और ये भी याद रखना कि हमारी मोहब्बत ईमान है और हमसे दुश्मनी कुफ्र है। ज़ाहिर है जो औलाद रसूल से दुश्मनी करेगा वो कहाँ से बाकी बचेगा, उसको रसूल की शफात कहाँ से नसीब होगी जो रसूल के बच्चों से दुश्मनी करेगा। ऐसे ही है ना, हमारी दुश्मनी कुफ्र है। याद रखना कि हमारी मोहब्बत जो है वो ईमान है, और हमसे जो नफ़रत है, हमसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो क्या है, वो कुफ्र हो जाएगा। ये छठे इमाम फरमाते हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ज़ियारत जामिया में आप ही से ये जुमला नक़ल, फिर इसके बाद वापस आपको हदीस किस्सा की तरफ ले जाएंगे, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन पहले ये सुनिए ज़ियारत जामिया का जुमला। फरमाते हैं कि मन अहब्बकुम अहब्बल्लाह फ़क़द अहब्बल्लाह, ए आले रसूल, ए अहले बैत रसूल, जिसने भी आपसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। फ़क़द अहब्बल्लाह, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने भी आपसे मोहब्बत की उसने किससे मोहब्बत की, अल्लाह। अब आ रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत कहाँ ढूंढी जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत ढूंढी जाएगी फातिमा के घर में। यह है वो दरवाज़ा जो अल्लाह के रसूल ने बार बार दिखाया। अब यहाँ समेट रहे हैं बयान को, यहीं जहाँ ख़त्म करें इंशाअल्लाह, कल यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखिए सब जानते हैं कि ये वो दरवाज़ा है, इस पे भी किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है कि अल्लाह के रसूल जब घर से सुबह के वक्त निकलते थे मस्जिद नबी में जाने के लिए, तो कोई दरवाज़ा है जहाँ रुक जाया करते थे, है ना। एक दरवाजे पर रुक के सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वह मादिन व रिसाला मुख्तलिफुल मलाइका। ये किसका दरवाज़ा है, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा है। यानी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो दरवाज़ा है जहाँ अल्लाह का रसूल खड़ा होकर सलामती भेजता है, दुरूद भेजता है, फिर मस्जिद नबी में जाता है। या अहले बैत नबुव्वत, आप पर अल्लाह के रसूल का सलाम हो। ए मादिन, मादिन कहते हैं कान को ना, ऐन से मादिन, कान को कहते हैं ना मादिन रिसाला, यानी आप रिसालत का मखज़न हैं, मादिन हैं, कान है जहाँ से रिसालत निकल रही है। मुख्तलिफुल मलाइका, आप मलाइका के आने जाने की जगह, ये भी बता दिया कि फातिमा आपका घर मलाइका के आने जाने की जगह है। काश दुनिया ने मकाम फातिमा ही समझ लिया होता सिर्फ, तो कोई परेशानी नहीं होती कि वो घर कौन सा है जहां से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। इंशाअल्लाह यहीं से बात को
आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक पहुँच गए हम इस हदीस तक, लेकिन अभी मफहूम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मफहूम को लेकर आगे चलेंगे कल। अभी यहाँ पे हमने रखा बस ये रसूल के बच्चे। अच्छा, पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से सलावत भेजिए। इसकी तफसील तो हम बयान करेंगे आइंदा मजलिस में, लेकिन अभी इशारा आपको दे रहे हैं कि ये बताइए कि अल्लाह का रसूल जो मोहब्बत करेगा वो कैसी मोहब्बत है? आम इंसानों की मोहब्बत होगी? देखें ना, अल्लाह का रसूल है, अगर वो अपने बच्चों से इस शिद्दत की मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो भाई सोचना पड़ेगा ना कि क्यों आम बच्चों की मोहब्बत, आम बाप की अपने बच्ची से या बच्चों से मोहब्बत नहीं है। अगर अपने बच्चों के लिए फरमा रहे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, अब बरसों से जब से होश संभालता है एक मुसलमान का बच्चा वही हदीस सुनता रहता है ना, इस पर मुझे तकरार की, तो भाई इसका मतलब कोई बात है ना कि अगर ये कहते कि हुसैन मुझसे मोहब्बत करते, नवासे नाना नवासे की मोहब्बत है, नाना नवासे की मोहब्बत मान ली जाती अगर ये बात ना होती कि वह अना मिनल हुसैन, मैं भी हुसैन से हूं, तो मैं भी हुसैन से होने का क्या मतलब? इस्लाम बचा, कलमा बचा, रिसालत बची, ये जितनी चीजें बची कहाँ बची? ये हम नहीं कह रहे, अल्लामा इकबाल भी यही फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश सत्र उन्वाने न जाते माँ नविश, वो हुसैन वो है जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को सहरा पे लिख दिया। रेत पर लिखना मुश्किल है ना, तो बस बहरे अकदर खाकों को गलती दे आस्त, बस बिना ए ला इलाहा गर्दी दे आस्त। अगर अल्लामा इकबाल ने ना कहा होता तो हमारी गर्दन पकड़ लेते लोग, लेकिन शुक्र है कि अल्लामा इकबाल की ये बात जानते थे कि बस बिना ए ला इलाहा गर्दी दे आस्त सिर्फ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल ने भी यही बात की कि बस हुसैन कौन? जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बन गया। अब समझ में आ गई? मैंने इसलिए अल्लामा इकबाल का नाम लेके कैद लगा दी कि खामखा में कुछ लोगों की तरफ से मसाइल खड़े हो जाते हैं, तुमको मालूम हो जाए कि मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, जिन्होंने ख्वाब देखा था, ये वो फरमा रहे हैं। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले तो भाई याद रखिए कि अहले बैत के जो बच्चे हैं ना, उनका भी अलग मकाम है। बस जिसने कुर्बानी दी, जिसने इस मोहब्बत का ऐलान किया हुसैन के साथ, तो हुसैन के साथ मोहब्बत क्या है? रसूल के साथ मोहब्बत। ये कलम तफसील से बताएंगे, लेकिन आज समेट में बयान। हुसैन के साथ मोहब्बत क्या है? रसूल के साथ मोहब्बत। और रसूल के साथ मोहब्बत क्या है? अल्लाह के साथ मोहब्बत। आज हर साल जिनकी शहादत हम बयान करते हैं ना, वो मुस्लिम के 2 यतीम हैं, बच्चे, बच्चों का ही जिक्र करते हैं ना, मुस्लिम के यतीम। जनाब मुस्लिम बड़ी बेकसी से शहीद किए गए थे, जानते हैं ना? उनका लाशा कितने अरसे तक बेसर का लाशा बाब कनासा पे, बाब कूफा पे लटका रहा, कब तक लटका रहा। लेकिन आखिर वक्त में जानते हैं, अब अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी मुस्लिम को। वसीयत में ज़रूर एक बार जिक्र किया है, तो वसीयत की है कि भाई मेरे बच्चे उनको वहाँ पहुँचा देना, किसी ने नहीं पहुँचाया, जिंदान पहुँचा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी फ़िक्र ये थी जनाब मुस्लिम को, कहीं से कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मेरे मौला तक पैगाम ले जाए। उन्हें ये फिक्र थी ना, मैंने ख़त लिख दिया कि सब आपके साथ यहाँ आ जाइए। उन्हें ये फिक्र थी कि किसी तरह कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसको मैं भेजूँ कि मौला कूफे मत आना, कूफे वालों ने दगा की है, कूफे वालों ने बेवफाई की। इन कूफे वालों ने क्या किया कि इनके सामने मुस्लिम के 2 बच्चे जिंदान में डाल दिए। कब तक मुझे नहीं मालूम, कोई मुद्दत नहीं लिखी, लेकिन जिक्र तो है ना हर जगह रिवायत। बस आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने दरोगा जिंदान को रोक लिया कि भाई एक बात तो सुन ले, हमारी बच्चों को दिन और रात का नहीं मालूम। बस जब दरोगा जिंदान आता था ना, तो उससे अंदाज़ा कर लेते थे कि अब मगरिब हो गई। और वहाँ से ये मासूम बच्चे नमाजों के औकात का तयन कर लेते थे। क्यों? उस ज़माने के ज़िंदान ऐसे तो नहीं थे इसमें खिड़कियाँ दरवाजे हों, वो ज़िंदान ज़ेरे ज़मीन हुआ करते थे। सिर्फ एक रोज़न रखा जाता था जिससे हवा आ जा सके, रोशनी नहीं, हवा आ जा सके, ऐसा रोज़न होता था। तो वो ज़ेरे ज़मीन ज़िंदान में थे। एक दिन का आपस में भी मशवरा किया, कब तक ऐसे पड़े रहेंगे, कुछ बात तो की जाए। जाने लगा, पूछा उससे, भाई एक बात तो सुन ले। क्या बात है? कहिए बता, क्या तू रसूलुल्लाह को जानता है?
तारफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैसा, कैसी बात करते हो, मुसलमानों कलमा पढ़ता हूँ सुबह शाम, ये कैसा सवाल कर रहे हो? अच्छा ये बता, क्या उनके भाई अली को भी जानता है? मेरा मौला है। नाम ले लेते रहे बनी हाशिम के, अपने दादा का नाम लिया। क्या तालिब को जानता है? अकील को जानता है? जनाब अकील के पोते हैं। जनाब जाफ़र को जानता है। वो सब कहते हैं कि तुम बच्चे हो कौन, ये सब नाम कैसे ले रहे हो? अच्छा वो बेचारा एक सीधा सादा जेलर जिसको कह लिए दरोगा जिंदा, उससे मालूम नहीं ये कौन है क्या है, लेकिन दिल में मोहब्बत है अहले बैत की। अब इन बच्चों ने कहा कि हम उसी मुस्लिम के यतीम हैं जिस मुस्लिम को कूफे में कत्ल किया। रोने लगा दरोगा जिंदा, कदमों में गिर पड़ा। बच्चों तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे शहजादों पहले क्यों नहीं बताया? तुम आज़ाद, खोल रहा हूँ जिंदान का दरवाज़ा, चाहे कत्ल कर दिया जाऊँगा, मार दिया जाऊँगा, लेकिन ये जुल्म नहीं कर सकता आले रसूल पे। जानता है कि आले रसूल से दुश्मनी करके सिवाय दोज़ख की आग के अंगारों के, जहन्नम के अंगारों का कुछ भी नहीं मिलेगा। आले रसूल से दुश्मनी नहीं कर सकता। खुश हो गए, दुआएं दी, दुआएं दी। उसने ये नहीं बता, बच्चों को नहीं मालूम कि वाक़ई करबला हो चुका। बच्चे कह रहे बस हमें मदीने का रास्ता बता दे, हम अपने चचा हुसैन के पास चले जाएंगे। बच्चों को नहीं मालूम क्या हो चुका। ये भी जानता है, इसने भी बच्चों को कुछ नहीं बताया। कहा रास्ता मैं बता दूंगा, लेकिन ये एक मुझसे वादा करके जाओ। चलते चलते बच्चों का हाथ थाम लिया उसने, एक वादा करके जाओ, देखो अब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मेरी गर्दन मार दी जाएगी, लेकिन मुझसे वादा करो क़यामत के दिन मेरी शिफात करोगे। आप देखिए इसे यकीन कितना इन मासूम बच्चों के हक़ शिफात पर। जानता है ये बच्चे नहीं है, ये ख़ानदान रिसालत के चश्मो चिराग। यकीनन इन्हें यह हक़ होगा कि जिसकी शिफात करेंगे उसकी बख्शिश हो जाएगी। और बच्चों को भी अपने हक़ शिफात पर इतना यकीन है कि इस दरोगा जिंदान के हाथ थाम कर कहते इत्मीनान रख, तेरे बगैर जन्नत में कदम भी नहीं रखेंगे। खुश हो गया, दुआएं दी और दुआएं दी। बच्चे निकल आए, रात भर कूफे की गलियों में बेचारे घूमते रहे, रास्ता नहीं मिला। निकले बाहर, उस जगह पहुंचे जहां आज उनकी कब्रें हैं। इस नाचीज़ को यह शरफ़ हासिल है कि जब मैं वहाँ गया मुसैयब में, जो करबला से 60-70 किलोमीटर के फासले, वो कोई ज़्यादा कम हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तो वहाँ ज़ेर ज़मीन जो असल कब्रें हैं, मुझे ये शरफ़ मिला कि वो वहाँ के खादिमीन मुझे उस असल कब्रों तक लेकर गए। वहाँ नीचे जो उनकी कब्र के, वो अजीब बेकसी का आलम है। फ़ुरात के साहिल पर जहाँ मुसैयब में ये दोनों कब्रें हैं बच्चों की। तो खैर अब ये मुसैयब तक पहुँच गए, इन्हें नहीं मालूम कि हम कहाँ तक पहुँचे। सुबह होने लगी, बस ये मालूम कि साहिल है फ़ुरात का, एक दरख्त के ऊपर, और दरख्त के नीचे एक जौहर है, दरख्त पे अपने आप को छुपा लिया। अब जब फजर की नमाज़ पढ़ी, ऊपर छुपे हुए थे, ज़रा सी सफ़ेदी नमूदार हो रही है। होता है ना सुबह के जो सफ़ेदी हल्की हल्की सी आती है, तो सफ़ेदी कहते हो, सफ़ेदी नमूदार हुई। ज़ौजे हारिस की कनीज़ पानी भरने आई उस जौहर में। अब जो उसने जौहर में अपना ज़र्फ़ डाला तो देखा 2 चाँद से चेहरों का अक्स। वो जो दरख्त पे बैठे थे ना मासूम बच्चे, उनके चेहरों के अक्स। हैरान होकर कहती है मैंने ऐसे खूबसूरत और हसीन चेहरे इससे पहले नहीं देखे हैं। किस ममलिकत के शहजादे हो, तुम्हें अमान है, नीचे आओ, मुझे अपना हाल बताओ। शहजादे नीचे थे, कहा बस हम पर एक एहसान कर दे, हमें मदीने का रास्ता बता दे। कहती है मदीने में कौन है? कहा मदीने में हमारा चचा हुसैन है, हमें मदीने के रास्ते पे डाल दो। कहती है नहीं, दिन की रोशनी होने वाली, तुम नहीं जा सकते, जहाँ जगह जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं लोग, मेरे साथ चलो, मेरी मालिकन मुहिब अहले बैत है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकर आई। ज़ौजे हारिस को जब मालूम हुआ कि मुस्लिम के यतीम हैं, खुश हो गई। खिदमत की, बच्चे ना मालूम कब से जिंदान में थे, उनको नए लिबास दिए, बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा बनाई। शाम होने लगी, का इत्मीनान रखो, कल एक काफ़िला जाने वाला है, उसके साथ भेजूंगे, अभी नहीं जा सकते तुम, रात मेरे घर में गुजारो अमान से। रात को उसके शौहर के आने का वक्त हुआ, एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुफ्ल डाल दिया, ताला डाल दिया। कहने लगी मुझे माफ़ कर देना, मेरा शौहर इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुलाजिम है, डर लगता है कहीं इनाम के लालच में तुम्हारी मुखबरी ना कर दे। कैसा ज़माना होता है कि जब घर में ही लोग एक दूसरे से डर रहे होते हैं कि कोई मुखबरी ना कर दे। ऐसा ज़माना था, ऐसा माहौल था कूफे का, एक दूसरे से डरते थे, बाप बेटे से, बेटा बाप से। अभी आपने देखा ना, बीवी को डर है कि कहीं शौहर उसका मुखबरी ना कर दे। खैर रात को देर से आया, देर से आने का सबब पूछा तो वो कहता है कि मुस्लिम के बेटे, मुस्लिम के बच्चे, मुस्लिम के यतीम जिंदान से फ़रार हो गए और इब्ने ज़ियाद ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, ढूंढता रहा, सारा दिन नहीं मिले। कहा छोड़ उन बच्चों का पीछा, खैर खाया पिया, सोने के लिए लेट गया। इधर बच्चों ने ख्वाब देखा, छोटे भाई की आंख खुली, बड़े भाई का शाना हिलाने लगा निश्चप के करीब, भाई उठो, भाई उठो। बड़े भाई की आंख खुली, कहा भैया मैंने अभी अभी ये ख्वाब देखा।
बड़े भाई ने पूछा क्या ख्वाब देखा? कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम रसूल खुदा की बारगाह में, हमारे बाबा रसूल खुदा की बारगाह में, और रसूल खुदा पूछे मुस्लिम मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो? हमारे बाबा मुस्लिम ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे जालिम की कैद में हैं। तो अल्लाह के रसूल ने हमारे बाबा को सीने से लगा कि मुस्लिम इत्मीनान रखो, बस कुछ देर में तुम्हारे बच्चे आने वाले हैं। बड़ा भाई कहता है भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, दोनों बेटों के नाम हैं जनाब मुस्लिम के। मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों बच्चों को शहादत का यकीन हुआ, एक दूसरे के कमर में हाथ डाल के बगलगीर होकर रोना शुरू कर दिया। बच्चों के गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई, उस मलून की आंख खुल गई, हारिस मलून चौंक कर कहता है बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आती है? बीवी ने घबरा के कहा हमसाए में किसी के बच्चों के। तलवार उठा के बढ़ा के नहीं ये मेरे घर से आ रही है आवाज़। तलवार से कुफल को तोड़ा, ठोकर मार के जब अंदर दाखिल हुआ दोनों शहजादों को देखा तो गुस्से में चिल्ला कर कहता है सारा दिन तुम दोनों के पीछे मैं ख्वार होता रहा और तुम मेरे घर में छुपे हो। और रिवायत में नकल है कि आगे बढ़कर इतने ज़ोर से इसने ठोकरों से मारना शुरू किया उन मासूम बच्चों के चेहरे लहू लहान हो गए, कितने ही दंदाने मुबारक शहीद हो गए, टूट गए ना बच्चों के। चिल्लाता जाता है कि मेरे घर में छुपे हुए, रस्सी से बांध कर खींच कर लेके चला साहिल पे, कत्ल करूंगा। गुलाम भी साथ हुआ, बेटा भी साथ। पीछे पीछे ये मोमिना फरियाद करती जा रही कि छोड़ दे इन मासूम को, मैंने अमान दी थी, कुछ नहीं सुना। साहिल पर लेकर आया, उस जगह जहां इनकी कब्रें हैं फुरात के साहिल के साथ, वहां पर लेकर आया। चाहता था कि कत्ल करे। बच्चों ने कहा ठहर, अरबों का दस्तूर है, 3 में से एक बात मानते हैं, कोई एक बात मान ले। कहा क्या बातें हैं तुम्हारी? कहा देख हमारी पहली ख्वाहिश है कि हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करे। कहा नहीं मुझे डर है, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें फिर जिंदान में डाल देगा और मेरा इनाम रह जाएगा। कहा अच्छा फिर ऐसा कर, हमें हमारे चचा हुसैन की खिदमत में पहुंचा दे, जो इनाम तू चाहता है वो हम तुझे दिलवाए। का ये भी नामुमकिन है। समझ गया कि बच्चों को नहीं मालूम कि हुसैन शहीद कर दिए गए करबला में। जब वाक़ई करबला नहीं भी हुआ तो जब भी कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं नहीं पहुंचा सकता, कहता है बच्चे कहते हैं अच्छा फिर तीसरी ख्वाहिश है कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दे। ए हुसैन के चाहने वालों, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मकतब से है, मगर मुस्लिम के बच्चे आखिरी वक्त में ये बता रहे हैं कि हम आले रसूल हैं, हम अकील के पोते हैं, हम जाफ़र के पोते हैं, हम अली के पोते हैं। और रसूल खुदा भी तो रिश्ते में चचा है ना, मौला कायनात के और अकील के चचाजाद भाई हैं, अकील के और तालिब के और अली के, लिहाजा हम रसूल के भी पोते हैं। बता रहे हैं कि जब आखिरी वक्त में तलवार गर्दन पे आ जाए तो सजदे को ना भूलना, इतनी मोहलत है। बच्चों ने नमाज शुरू की, इस मलून ने अपने गुलाम से कहा वार कर, आगे बढ़, गर्दन जुदा कर। आगे बढ़ा, मगर एक बच्चे ने उसका चेहरा देखकर कहा क्या बिलाल हबशी की कौम से है? वो हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा बिलाल हबशी से क्या वास्ता है? कहा हमने देखा नहीं, लेकिन सुना है कि हमारे जद रसूल खुदा का मौज़िन था बिलाल हबशी। तो तुम खानदान रिसालत के चश्मो चराओ को ये जुल्म मैं नहीं कर सकता। तलवार फेंकी और दौड़ के नहर में छलांग लगा दी। बेटे को हुक्म दिया कत्ल कर। बेटा आगे बढ़ा, माँ ने चिल्ला कर कहा दूध नहीं बख्शूंगी। बेटा भी पीछे हट गया। झल्ला कर इसने तलवार उठाई, वार करना चाहता था कि इसकी ज़ौजा हारिस ने अपने आप को बच्चों पर गिरा दिया। उसके शाने पर तलवार लगी, जख्मी होकर एक तरफ गिर पड़ी। बस बच्चों ने नमाज शुरू की, सजदे में थे कि इसने बड़े भाई की गर्दन पे वार किया, पुश से सर को तन से जुदा किया। अपने साथ एक थैला लाया था, सर को थैली में रखा, जिस्म को नहर के हवाले कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई के खून में करवटें लेना शुरू की और फरियाद करता जाता है भैया मुझे अकेला छोड़ कर ना जाना। बड़े भाई का बेसर का जिस्म सतह आप पर ठहर गया, पानी की सतह पे ठहर गया। बड़ा भाई है, छोटा भाई अभी बड़े भाई के खून में करवटें ले रहा था कि इस मलून ने दूसरा वार किया, छोटे भाई का सर भी तन से जुदा किया, उस सर को भी थैले में डाला, जिस्म को नहर के हवाले किया। दोनों बेसर के लाशें बगलगीर हुए, तहे आप चले गए। बस आखिरी जुमले 2-3 सुन लीजिए। सुबह हुई, किसान अपने काम से जा रहे हैं, क्या देखा? साहिल पे कोई बीबी सर से पैर तक सियाह चादर में मलबूस बैठी है, ज़ारो कतार रो रही है। आगे बढ़कर उन किसानों ने कहा बीबी क्या कोई कीमती सामान पानी में गिर गया? वो बीबी कहती है हाँ हारिस मलून ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया।
मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के लाशें निकाल दो। वो किसान पानी में उतरे, दोनों बेसर के लाशों को निकाला। क्या देखा, साहिल पर वो बीबी इन दोनों बच्चों के दरमियान में बैठ गई। कभी सर एक के सीने पे पटक के रोती है, कभी दूसरे के सीने पे सर पटक के रोती है, और इन किसानों से कहती है तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चों के लाशें निकाले, मैं क़यामत के दिन तुम्हारी शिफात की जामिन हूँ। वो हैरान होकर कहते हैं बीबी आखिर आप हैं कौन जो इतने इत्मीनान से हमें जन्नत की बशारत देती हैं। नजरों से ओझल होने से पहले उस बीबी ने कहा मैं कोई और नहीं, तुम्हारे रसूल की बेटी फातिमा हूँ, और ये मेरे मुस्लिम के यतीम। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इधर खड़े हो जाओ। मातम हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला। अस्सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा। अस्सलाम अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अंसारा फातिमतु ज़हरा। फया लैतनी कुन्तु माकुम फाफूजा माकुम। सब मिलके ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला। मेरा भी ज़िक्र आता कुरान करबला में। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ज़हरा के लाडले पे जान अपनी वार देता, तबलीग मुस्तफ़ा का कर्जा उतार देता। हुर की तरह से मैं भी आदा से जांग करके इंसानियत का चेहरा हुसैन निखार देता। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी जज़ाकल्लाह बुलंद आवाज़ से ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में।
शह की तरफ जो बढ़ता वो हाथ काट देता, मैदान जंग सारा लाशों से पाट देता। जुज मौत और कहीं भी जाए जमा न मिलती, दिल जिंदगी से सबका ऐसा उचाट देता। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। मौला बजबरे किस्मत दिल में रही ये हसरत, हासिल हुआ ना मुझको सरमाए शहादत। अश्के अज़ा की बारिश करती रहेंगी आँखें, सीना जनी करूँगा इस गम में ता क़यामत। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। मौला बजबरे किस्मत दिल में रही ये हसरत, हासिल हुआ ना मुझको सरमाए शहादत। अश्के अज़ा की बारिश करती रहेंगी आँखें, सीना जनी करूँगा इस गम में ता क़यामत। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। मेरा सलाम उन पर जो तशना लब रगे गए, बेजुर्म करबला में जिनके गले कटे गए। घोड़ों से रोंद डाली आदान जिनकी लाशें, तपती हुई ज़मीं पर जो बेकफन पड़े गए। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने मिलके मिलके। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। हर बज़्म हर ज़बां पर है करबला के चर्चे, ताहशर कम न होंगे आले बा के चर्चे। अब्बास बावफा से दादे वफा जो मिलती, करता हर के मुअर्रिख मेरी वफा के चर्चे। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आहो मातम करो बीबी की दुआ लो लोगो, आओ मातम करो बीबी की दुआ लो। मिलके मिलके आओ मातम करो बीबी की दुआ लो। गम शबीर में दो आंसू बहा लो लोगो, गम शबीर में दो आंसू बहा लो लोगो। आओ मातम करो बीबी की दुआ लो लोगो। कूफा हो शाम के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा, कूफा हो शाम के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा, मैं नबी ज़ादी मेरा पर्दा बचा लो लोग, मैं नबी ज़ादी मेरा पर्दा बचा लो लोगो। आओ मातम करो बीबी की दुआ लो। सारे मिलके पढ़े, सारे मिलके। आओ मातम
करो बिनते ततहीर कुजा शाम का बाजार कुजा बिनते ततहीर कुजा शाम का बाजार कुजा सर पे चादर भी नहीं नजर झुका लो लोगों सर पे चादर भी नहीं नजर झुका लो लोगों आओ मातम करो बीबी की दुआ लो जज़ाकल्लाह मिलके आओ मातम करो बीबी की दुआ लो आज तक गूंज रही गए ये सदा मक्तल में आज तक गूंज रही गए ये सदा मक्तल में कैद से मेरी सकीना को छुड़ा लो लोगों कैद से मेरी सकीना को छुड़ा लो लोगों आओ मातम करो बीबी की दुआ लो जज़ाकल्लाह मिलके आओ मातम करो बीबी की दुआ लो रोज़े आशूर ये ज़ैनब की सदा आती है रोज़े आशूर ये ज़ैनब की सदा आती है मेरे भाई का जनाजा है उठा लो लोगों मेरे भाई का जनाजा है उठा लो लोगों आओ मातम करो बीबी की दुआ लो लोगों आओ मातम करो बीबी की दुआ लो जब भी अब्बास की याद आए सकीना की तरह जब भी अब्बास की याद आए सकीना की तरह एक सूखी सी कोई मश्क उठा लो लोगों एक सूखी सी कोई मश्क उठा लो लोगों आओ मातम करो बीबी की दुआ लो लोगों आओ मातम करो बीबी की दुआ लो इंशाअल्लाह कल के हम प्रॉपर तरीके से 3 कलाम मातम के पेश करेंगे उसके बाद आखिरी में दुआ इमाम ज़मान से अख्तिताम करेंगे आज पहली मजलिस है इसलिए इंशाअल्लाह आखिरी वक्त के इमाम को फुर्सत देने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं आइए मिलकर खुदा की बारगाह में अपने वक्त के इमाम के हवाले से कलाम पेश करें अल्लाह मुझे लश्करे मेहदी से मिला सारे मिलके पढ़िए अल्लाह मुझे लश्करे मेहदी से मिला ऐसा ना हुआ का मेरा हल मिल की सदा दे अल्लाह मुझे लश्करे से मिला दे नजरों को मेरी लायके दीदार बना दे इलाही आमीन पर्दा जो पड़ा है मेरी आँखों पर उठा दे हादी ज़मा का रुखे पुरनूर दिखा दे अल्लाह मुझे लश्करे मेहदी से मिला दे लिख दे मेरी तकदीर में मौला की गुलामी इलाही आमीन हाथ से
मुझे हो जाए ये एज़ाज़ दवामी, हर ख्वाहिश दुनिया को मेरे दिल से मिटा दे अल्लाह। इलाही आमीन। करे मेहदी से मिला, बुलंद नवाज से मिलके अल्लाह मुझे करे मेहदी से मिला दे। शामिल रहे लहजे में सदा है फे सदाकत, शमशीर तले मैं भी करूं कोई इबादत, ऐ काश मुझे फातिमा ज़हरा ये दुआ दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला। माशाल्लाह मिलके अल्लाह मुझे लश्कर हाथ उठा के दी से मिला दे। शबीर के अंसार में शामिल हो मेरा नाम, इलाही आमीन। जो हुर का हो महशर में वही हो मेरा अंजाम, इलाही आमीन। खाके कदमे हज़रत शबीर बना दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे। बुलंद आवाज़ से अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे। खंजर की ज़बां काट दूं मैं शेरगे जा से, आवाज़ फुगाने लगे तीरो कमा से, एक ऐसा तबस्सुम मेरे होंठों पे सजा दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला। माशाल्लाह मिलके अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे। देखूं ना गरोटे हुए पर दए गैबत, आए जो मेरे बाद यहाँ हज़रत हुज्जत, तुरबत में अबद कोई मेरा शाना हिला दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे। बुलंद वहाँ से अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला बाइक फी हादिहि साअति व फी कुल्ले साअत वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मा बुलंद तर सलावत। अब्बास अपना अमीरुल मोमिनीन
अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुईनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका असीरल आदा, अस्सलामु अलैका शम्स शमूस व निसन नुफूस, अय्युल मदफून बिर्दतूस सुल्तान अल अरब वल अजम या अबल हसन इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका मौलाना या साहिबुल असर वल ज़मान अलमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक जअलना अल्लाहु मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।